السلام علیکم دوستوں، میں لاہور میں موجود ہوں اور قادر خواجہ اسپورٹس جرنلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے حارث رؤف کو سبق سکھانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ حارث رؤف کو بگ بیش لیگ BBL نہ کھیلنے دیا جائے اس سال. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے کرکٹرز کو یہ رولز کے اندر لکھ دیا ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں کہ آپ 2 لیگز کھیل سکتے ہو، ایک PSL اور ایک اور کوئی لیگ. اور حارث نے جو اگلی لیگ کھیلنی ہے وہ کھیلنی ہے BBL. ٹیسٹ کرکٹ آسٹریلیا میں جا کے حارث نے کھیلنے سے انکار کیا. اس کے اوپر کرکٹ بورڈ نے اتنی بڑی بڑی آنکھیں دکھانا حارث کو شروع کر دی ہے. قادر خواجہ جو کہ سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلبل کے ساتھ فاختہ جو ہے نا وہ اپنی خبریں لے کے آتی ہے. تو میں قادر بھائی سے آج کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ٹپڑیں لینا چاہوں. قادر بھائی مجھے ایک بات بتائیں، کیا کرکٹ بورڈ اب جو ہے حارث رؤف کو بگ بیش لیگ سے روک رہا ہے؟ روکنے کی بات ہو رہی ہے کرکٹ بورڈ کی بلڈنگ میں؟ یہ جو ہمارے رائٹ کے اوپر بلڈنگ ہے وہاں پر کیا سرگوشیاں چل رہی ہیں؟ سر جی، ہمارے پاس جو ہے نا وہ شروع سے ایک المیہ رہا ہے کہ ہم اپنے پلیئر کی قدر نہیں کرتے. ہم اپنے پلیئر کی جو ڈیسیژن ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. ہمیشہ پلیئر کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایک دوسرا پلیئر ہی آگے آتا ہے. وہاب ریاض صاحب سابق پلیئر ہیں، مشیر کھیل ہیں. محمد حفیظ سابق پلیئر ہیں اور ٹیم ڈائریکٹر ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کون آیا جی، عمر گل آئے ہیں، سابق پلیئر ہیں. سعید اجمل آئے، سابق پلیئر ہیں. اچھا جی، عبد المجید بھی واپس آ گئے، بتا منصور رانا صاحب بھی. ہاں مجھے لگتا ہے آفتاب خان بھی، سارے پرانے فارغ کر دیے انہوں نے. آفتاب خان بھی، رضا راشد بھی، رضا راشد بھی، وہ 2017 چیمپئنز ٹرافی والے سارے لوگ واپس آ گئے. اچھا جی، تو دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو حارث رؤف ہیں ان کو اپنی باڈی کا پتہ ہے بھائی. ان کو وہ نہیں چاہتے، جو ہماری ان کے سورسز سے بات ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی باڈی پر جو ہے وہ فٹیگ ایک ڈالیں. اور BBL پہ بھی فٹیگ نہ ڈالے وہ. سر BBL تو یہ کہتا ہے. ہاں دیکھیں، اگر وہ انہوں نے کرکٹ بورڈ کے لیے، کرکٹ بورڈ اگر یہ کہہ رہا ہے اور اگر BBL کے لیے انہوں نے اپنی ٹیسٹ سیریز چھوڑی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. اگر یہ ہوا تو میں سب سے بڑا ناقد ہوں گا اس چیز کا کہ پاکستان کو سب سے پہلے پرائیورٹی، جس نے آپ کو عزت دی ہے بھائی. نو ڈاؤٹ آپ بگ بیش سے سلیکٹ ہوئے، بگ بیش میں اچھی پرفارمنس دی اور پاکستان ٹیم میں آئے، بغیر ڈومیسٹک کھیلے، ٹیپ بال کھیلتے تھے اور اس کے بعد لاہور قلندر کی طرف سے آئے. آپ کو ایک موقع ملا، آپ نے اس کو یوٹیلائز کیا، اچھے طریقے سے آپ پالش ہوئے. اگر حارث BBL کھیلتا ہے تو آپ کو برا لگے گا؟ مجھے برا نہیں لگے گا، پورے پاکستان کو برا لگے گا. اگر وہ 4 اوور کی کرکٹ کھیلتا ہے، اگر وہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلتا. دیکھیں اگر وہ نیوزی لینڈ، میری قادر خواجہ وہ کہتا ہے کہ میں ریڈ بال نہیں کھیلنا چاہتا، میں وائٹ بال کھیلنا چاہتا ہوں. وہاب ریاض اور محمد عامر نے بھی تو یہی مصباح اور آبکار کو کہا تھا اور اس کے بعد وہ کنسیڈر نہیں ہوئے تھے، بورڈ غصہ کر گیا تھا. تو وہ اگر 4 اوور کی کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے T20 ورلڈ کپ پہ نظر رکھ کے. سب سے پہلے ایک بات بتائیں، ہم مصباح الحق کو کوستے رہے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ پلیئروں کو مصباح الحق زہر لگتے تھے. وہ کیوں لگتے تھے؟ وہ اس وجہ سے لگتے تھے کہ انہوں نے فٹنس ٹیسٹ لینے شروع کر دیے تھے. یاد ہے آپ کو؟ جب ہمارے پاس فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوں گے پلیئرز کے، ہمارے پاس پلیئرز جو ہیں وہ اپ ٹو دا مارک فٹنس لیول پر نہیں آئیں گے. آپ نے شرجیل خان کو، اعظم خان کو اسی وجہ سے باہر کیا ہوا ہے کہ وہ فٹنس پر پورا نہیں اترتے. ٹھیک ہے، ہم نے فٹنس کا چارٹ ڈالنا ہے بھائی. وہ مڈل آرڈر میں اوپننگ میں اتنا اچھا کھیلتا ہے، بتائیں نا کون کھیلتا ہے اس جیسا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ادھر آ رہا ہوں. فٹنس پہ جب تک ان کو نہیں خیال تھا تب تک ہمارے بولر جو ہیں وہ کیسے فٹ رہتے. آپ انفٹ پلیئرز کو کھلاتے رہے، آپ انفٹ پلیئرز کو NOC دیتے رہے سری لنکن پریمیئر لیگ کے لیے، کیریبین پریمیئر لیگ کے لیے، بگ بیش کے لیے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ آگے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ آ رہا ہے، اس کے لیے آپ کے پلیئر جو ہیں وہ انجرڈ ہو سکتے ہیں. نسیم شاہ انجرڈ جو ہے وہ کھیلے، حارث رؤف انجرڈ تھے، حارث رؤف انجرڈ تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا حارث رؤف کے ساتھ، مجھے یہ بتائیں. اب یہ دوبارہ وہاب ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ریبز اگر ہوتی ہیں خراب تو ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے. تو بھائی پہلے کیوں نہیں کیا؟ سوال تو یہ ہے. پہلے بھی ٹھیک کر اگر ایک پلیئر، یار مجھے یہ بتائیں، اگر اس نے بگ بیش کے لیے کیا تو وہ غلط ہے. اگر اس کو پتا ہے کہ میری باڈی پہ یہ لوڈ میں برداشت نہیں کر سکتا بھائی ٹیسٹ کا، کیونکہ اس کی ایک جو ہڈیاں پسلیاں ہیں وہ اس کو پتا ہے کہ اس کا کتنا زور لگتا ہے. وہ 150 جب بول کرتا ہے تو اس کا کیا
पोस्चर जाता है। मेरे जो बीबीएन के फॉलोअर है ना, उनको ना मैं सीधी बात बताता हूँ, घुमा फिरा के नहीं। हारिस रऊफ ये कहता है कि मैं व्हाइट बॉल T20 क्रिकेट और ओडीआई पे में कब कहा है मुझे ये? उसके करीबी जराए जो कहते नहीं हैं। कहते। आकिब जावेद जो बात करता है तो मतलब है कि वो हारिस बात कर रहा है। अच्छा, आकिब जावेद को मतलब कोड कर दें हम हारिस को, यार आकिब का इंटरव्यू, हारिस उसको डिनाई कर दे, फिर कौन दे? यार मेरी बात सुनो, आप ना आप बच्चे हो ना मैं बच्चा हूं। अगर आकिब जावेद उसका फ्रेंचाइज कोच बात करता है तो इसका मतलब है वो हारिस के बिहाफ पे बात कर रहा है। तो भाई हारिस पहले बता देते ना। नहीं तो हारिस पहले कहते हैं कि मेरी बॉडी नहीं, साइड गलत बात है ना। अब आप मौके पर आकर चौका मारेंगे तो फायदा। सुन पहले बात पूरी हो। हारिस का मौक़िफ़ ये है, उसकी साइड का मौक़िफ़ ये है कि मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप पे नजर रखना चाहता हूं। तो यही मैं कह रहा हूं तब से। तो फिर क्या पाकिस्तान T20 सीरीज और नहीं, तो T20 वर्ल्ड कप, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में भी ना खेलने दो उसको कि उसने टेस्ट सीरीज नहीं खेली। अगर वो BBL जाके खेलता है, 4 ओवर की क्रिकेट खेलता है और वो सामने जून वाला वर्ल्ड कप देख रहा है, तो इसमें कबात क्या है? अच्छा, जून में वर्ल्ड कप है ना जी, ठीक है जी। अगर वो BBL में इंजर्ड हो जाता है तो आप जिम्मेदार है। अगर PSL में हो जाता है तो, अगर न्यूजीलैंड के 5 T20 में हो जाता है तब, मेरी बात, इंग्लैंड में जाके हो जाता है, वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले इंग्लैंड के साथ 3 T20 वहां हो जाता है तब, तो सर फिर आप एक क्राइटेरिया बनाया ना आपने। अगर 2 लीग्स खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मैं आपको बताऊं, कल के अंधों को भी पता है कि वो रेड बॉल का बॉलर नहीं है यार, वो रेड बॉल का बॉलर नहीं है। शामिल किया था उसको टेस्ट स्क्वाड में, उस वक्त डाल दिया था क्योंकि आपके नीचे बंदे जख्मी हो गए थे सारे। क्यों मर गए थे? बाकी बंदा ही कोई नहीं था। मीर हमजा किधर था? अगर पाकिस्तान मोहम्मद अब्बास किधर था? अब्बास, हारिस का कसूर है। तो किसका कसूर है? नहीं, बेंच के ऊपर आपके पास बंदा नहीं है तो हारिस का कसूर है। मेरी बात सुने, हारिस तब नहीं मना कर सकता था क्या कि मैं नहीं टेस्ट स्क्वाड खेला, मेरी बॉडी नहीं जा रही? उस वक्त उसकी 2 मरतबा 2 इवेंट्स में पसलियों में दर्द हो चुका था। अच्छा, हो चुका था। कब का नहीं हुआ था? हारिस का हो चुका पिंडी में टेस्ट मैच खेला हुआ है, पाकिस्तान में खेला हुआ है, मुझे वेन्यू का नहीं पता। हारिस ने जब टेस्ट मैच खेला था उस वक्त भी आपके पास बैकअप पे बंदे नहीं थे। अगर आज आपके पास बंदे नहीं है तो हारिस का कसूर है। अच्छा, दानी को आज अपने कैंप से वापस NCA भिजवा दिया है। इंजरी हो गई है, इंजरी हो गई है। यहाँ पे तो सबको इंजरी है। 10 बंदे उनके पास इंजरी है उनकी, और आप मोहम्मद अली को उठा के ले थे। वो मोहम्मद अली कहाँ है जिसको पिछला टेस्ट सीजन खिलाया है? वो कहाँ है? डेजी मोहम्मद अली। क्या बात करो। अब मैं हैरान हूं, आप भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हो प्लेयर्स को लताड़ने में। मैं लानत भेजता हूं किसी के साथ मिलने पर। मैं आपको एक हक की बात ये करना चाह रहा हूं कि अगर जो पॉइंट है ना उसको समझें। अगर इस वजह से कि बिग बैश खेलनी है और पाकिस्तान को मैं प्रायोरिटी पे नहीं रखता तो ये मैं गलत कह रहा हूं। वजह नहीं है, वो कहता है मैं शॉर्ट फॉर्मेट के ऊपर अपना फोकस रखना चाहता हूं। मुझे जहां तक पता लगा ना, हाँ। उन्होंने BBL का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं अपना फोकस, जो उन्होंने अपने करीबी ज़राए से बात की है, वर्ल्ड कप। हाँ, उन्होंने अपने कहा जी मैं न्यूजीलैंड सीरीज और वर्ल्ड कप, उसमें भी पाकिस्तान है ना, बिग बैश में तो नहीं है ना पाकिस्तान। नहीं। तो उस दोनों को सीरीज को मद्देनजर रखकर मैंने थोड़ा सा नहीं तो अगर न्यूजीलैंड सीरीज से पहले बिग बैश में ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाके वो 2-4 ओवर डाल देता है तो इसमें ये गुनाह हो जाएगा, ये गद्दारी हो जाएगी। गुनाह तो नहीं है। ये सारे क्या करते रहे जो आज बैठे डिसीजन मेकर हैं, ये सारे क्या करते रहे? यही कुछ करते रहे। T10 की खातर मोहम्मद हफीज कैंप से लेट हो गए थे, याद है आपको? जी मुझे पता है, कोविड के दिनों में। जी याद है? उस वक्त नहीं उनको याद आता। हमने जब उस वक्त कहा जी कि हफीज जो हैं वो लेट ज्वाइन करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से फ़ोन गया था उनको, याद है आपको? हफीज को कहा गया था कि आप अभी हमारे कैंप का हिस्सा ना बने यार। ज़का अशरफ साहब अगर आप T10 में जाएंगे। ज़का अशरफ साहब ने जिन लेजेंड्स को इस वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट की बागडोर संभाली है, उन लेजेंड्स को एक बंदा चीज याद कराए कि 1999 से लेकर 2023 तक 6 वर्ल्ड कप में हम एक बार सेमीफाइनल में गए। 6 वर्ल्ड कप में एक बार सेमीफाइनल में गए। मुझे ये बताएं, सईद अजमल को बॉलिंग क्यों छोड़ी थी? बैन लगा था, वापस आए तो उनसे गेंद सही तौर पे हो ही नहीं रहा था, बैन लगा था। बैन लगा था? हाँ। क्यों लगा था? वो बॉलिंग एक्शन। हाँ, बॉलिंग एक्शन उनका वो एंगल टेढ़ा था या जंप मारते थे। बाद में ठीक उन्होंने करके आगे खेले लेकिन इफेक्टिव नहीं थे ना। हाँ, 2015 के वर्ल्ड कप से पहले उनको निकाला गया। तो आज वो क्या है? वापस आज कोच हैं। ठीक है, तो वो करवा चुका है ना, अपना बाजू ठीक करवा चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में इतने अरसे से नहीं बैठा हुआ, 2 टीम पिछली दफा प्लेऑफ नहीं खेली है। जी जब से बोता की कोचिंग खत्म हुई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कौन सा स्पिनर दिया आपको? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आपको एक ज़िशान ज़मीर फास्ट बॉलर दिया था, वो बेचारा वापस ही नहीं। फास्ट बॉलर को सईद अजमल सही करवाता था। सईद अजमल यार, सईद अजमल को अगर अब अकेडमी तो अपनी चलाता है, वो फैसलाबाद में अकेडमी चला रहे हैं। वाहिद क्रिकेटर है शायद जो क्रिकेट के साथ जुड़ा तो है। सलमान बट क्या करता है? सलमान बट DHA के लिए काम करता है, अपनी पर्सनल अकेडमी तो नहीं है उसकी। बच्चे
प्रोड्यूस करता बच्चे है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ करता है, ऐसे ही है, मेहनत करते देखा ना आपने, करता है, मेहनत करता है। उसका अपना क्लब तो नहीं है ना, तो हाँ, तो उसको मौका, सलमान बट का क्या कसूर है? सलमान बट की शक्ल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पसंद। क्यों? वो इसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जी वो टेंटेड है, ये बोर्ड के लोग कहते हैं। उसको तो पीएसएल की कमेंट्री नहीं देते। मैंने 10 दफा सलमान को कहा है कि यार आप भी ऊपर से अप्रोच करो जहां से बाकी अप्रोच करवाते हैं। अच्छा, वो कहता है नहीं यार, मैं अगर इनको लगता है सेंसिबल क्रिकेटर है, गलती आमिर से भी हुई थी, सबसे हुई थी, तो गलती बाकियों से भी हुई थी। सईद अजमल भी आपको पता है कितने बड़े खम के साथ करवाते रहे थे, लेकिन बट के लिए रूल्स अलग हैं भाई। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में कौन कौन था? सारे बड़े, सारे बड़े, सारे सन आज सारे वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, जरूर बैठे हैं, और सर्विस ऑलरेडी दे भी चुके हैं, 2-4 दफा दे चुके हैं। वसीम अकरम टेक्निकल कमेटी, सलमान बट उनको नहीं पसंद यार, मैं ये तो कह रहा हूँ, बट जैसा सेंसिबल बंदा उनको नहीं पसंद भाई। सर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है ना, सिर्फ ये वाली नहीं, जितने आ रहे हैं ये वाली याद रखी जाएगी सारी जिंदगी कि इसने क्या क्या डिसीजन लिए और क्या क्या किया। वो जका साहब कहते हैं मैंने क्रिकेटर्स के हवाले ही क्रिकेट बोर्ड कर दिया है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गैर मुल्की आते थे, लूट के चले जाते थे, मैंने उनको निकाल के अपने ही बंदों को दे दिया सारा कुछ, और अपने बंदों ने स्टार्ट क्या लिया है, वो अपने ही प्लेयर्स को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है। हाँ जी, यही होता है अल्लाह के हुक्म से, और यही होता रहेगा। ठीक है, अपनी दफा जो है वो सारी, मुझे तो इनकी प्लेइंग 11 से डर लग रहा है। कहीं जरा शान मसूद कप्तान को एडजस्ट, कैसा अल्लाह ने सानू कप्तान देता है जिन्होंने असी 11 एडजस्ट कर रहे हैं यार। नहीं, अब हो गया डिसीजन, उसको बैक करो ना। मैं जी कप्तान के पीछे खड़ा हुआ हूं। मैं कहाँ कप्तान के पीछे खड़ा हुआ हूं? डिसीजन ले लिया ना। हाँ। बाबर आजम ने क्यों इस्तीफा दिया? बाबर आजम ने ना देता इस्तीफा, बोर्ड चाह रहा था। हैं? बोर्ड चाह रहा था ना। तो करता केस, क्या करता, किस पे केस करता? दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। हाँ। प्लेयर ओए यार हम थैंक्सलेस लोग हैं भाई। नहीं बाकरी साहब, मुझे एक बात बताएं। हम जब जो है ना वो इक्तदार में होते हैं ना, उस टाइम पे बातें छुपा लेते हैं, और जब हटते हैं ना उस टाइम पे जवेद मियादाद बन जाते हैं। ठीक है, बाबर आजम ने क्यों नहीं केस किया पर्सनल चैट का? किस पे? ओ जो जका ने जो लीक किया है, जका अशरफ और सलमान नसीर। यार बाबर का काम क्रिकेट खेलना है या वो बाबर आजम को कोई, अब आप मुझे ये बताओ, तीनों फॉर्मेट से बाबर आजम को कोई हटा सकता है? मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। मैं टीम के साथ ट्रैवल करता रहा हूँ, और जब टीम कलकत्ता से सुबह 5-6 बजे निकल रही थी तो मैं भी लॉबी में मौजूद था। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की 30 सेकंड के अंदर आपको हिस्ट्री बताता हूँ। 1996 के वर्ल्ड कप में वसीम क्वार्टर फाइनल नहीं खेला, रेगुलर कप्तान था, लोगों ने घर वट्टे मारे। 99 में लोगों ने वट्टे मारे। 2003 के अंदर वकार यूनुस को कप्तानी छोड़नी पड़ी। 2007 में बॉब बुलमर की डेथ हुई, इंजमाम को रोते हुए ग्राउंड से निकलना पड़ा। 2011 में शाहिद अफरीदी को कप्तानी से हटाना पड़ा, सेमीफाइनल हारे। 2015 में मिसबा क्वार्टर फाइनल खेला, निकाल दिया गया। 2019 में सैफी सेमीफाइनल में नहीं जा सका, निकाल दिया गया। बाबर नहीं जा सका। ये हमारी कौम की टेम्परामेंट ही है, हमारे साबिक क्रिकेटर्स का। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद बचाओ, मुझे एक कप्तान बता दे। हमारी ये हिस्ट्री और हमारी तारीख है, सच बोला कर थोड़ा सा। अच्छा जी, हाँ जी। बाबर क्या करता वहां पे जो हालात बना दिए गए थे उसके इर्द गिर्द? हालांकि चाचा जका हटा नहीं सकता सी, लेकिन वो कौम का टेम्परामेंट, साबिक क्रिकेटर्स का, मीडिया का, बोर्ड का, ड्यूरिंग इवेंट प्रेस रिलीज बीसीबी ने कर दी कि तुम और इंजमाम जिम्मेदार हो गए। यार जका अशरफ साहब का तो आप रहने दें, वो चौधरी आदमी है। जो बंदा अपने उन मशीरों से मशवरे करे जिनको क्रिकेट की अलीबे नहीं पता, तो उसने क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का क्या फैसले लेने। खैर जो आप बहरहाल वर्ल्ड कप में, मैं खत्म करने लगा वीडियो, वर्ल्ड कप में तबाही हुई थी और हमने आगाज जो है वो अच्छी ईंट रखने की बजाय हमने टेढ़ी ईंट रखी है दोबारा अपनी बुनियाद की। टूटी हुई ईंट। थैंक यू सो मच।